Okay. So, welcome to another episode of the SNS Cricket Diaries, and it's an absolute honor once again to have Saad Nasser from Pro Sports from across the border. Thank you so much, Saad, for joining in. Thank you so much for calling me again, Siddharth. So, Saad, the T20 World Cup is over. So, मैंने Hmm. सोचा कि इस episode में I would like you to talk about a few things that have Yeah. taken place in the World Cup. So, overall, how about that final? What a match it was. What is your take on the final that happened? My God, topsy turvy game, right? दोनों की उसमें जा रही थी. कभी India on top, कभी South Africa on top. That innings by Klaasen and that comeback by India, Bumrah special. It was an occasion, a fitting end to a wonderful tournament. Few things aside, थोड़ी सी ICC की जो मैं है उस मैनेजमेंट उससे ज़्यादा खुश नहीं था. उसके अलावा the cricket on display, the different flavors we got from different countries, different pitches. That was brilliant to see as well. And a fitting final where one team got on top, then the other team fought back. It was like a boxing match, right? So at the end, I think India were the deserved winners. They were the best team in the tournament. और जिस तरह की क्वालिटी वो लेके आए हैं थ्रू आउट द स्क्वाड, फ्रॉम जिस तरह उन्होंने फॉर्म किया अपनी T20 साइड, और the quality they have in the bowling department is very underrated. सारे बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की. ये historically we've seen India's batting perform, and bowling perform not so much, right? But this time the bowling was exceptional. The likes of Bumrah, Arshdeep Singh was a surprise. We all knew he was good, but we didn't know he was that great, right? Kuldeep Yadav bringing in his flavor. Akshay Patel surprised me both with the bat and the ball. So all round, I think India were the deserved winners. Or hard luck to South Africa because they were great throughout the tournament as well. They were unbeaten up until that last 5 overs of the final. So great stuff. मजा आया. एज अ न्यूट्रल जिसके कोई स्टेक्स नहीं थे इस गेम में, मुझे तो और ज्यादा मजा आया क्योंकि आई एम श्योर अक्रॉस द बॉर्डर आप भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आपकी क्या उस वक्त हालत हो रही होगी. मैं एंजॉय Yeah. करके मैच देख रहा था. आई लव्ड इट. Okay. Yeah, it was absolutely nail biting, and I'm sure many of the Indians after that Henrik Klassen over will probably had switched off the television sets. I was also about to do that, but somehow some hope was still there. So, but अगर इस match के starting में आए साथ very curious I'm very curious to know your take on Virat Kohli's knock, because काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि दिस कुड हैव गॉन आइदर वे, अगर इंडिया हार जाती, तो विराट कोहली के इस नॉक को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता. सो हाउ डू यू बट बिकॉज़ इंडिया वन, सो दैट्स द इनिंग्स नाउ स्टैंड्स आउट एज़ वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स ऑफ हिज करियर. या. तो हाउ डू यू व्यू दिस साद? डू यू थिंक दैट अगर इंडिया हारती ये मैच, तो उस इनिंग्स को क्रिटिसाइज़ किया जाना जायज़ होता? And how do you generally view Kohli's innings that time? Was he was it fair for on his part to play the way he did, or could he have accelerated a bit more? यार, क्रिकेट इज अ फनी गेम. और विराट कोहली की जो इनिंग्स थी इन दैट सिचुएशन, आई पर्सनली थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग उसे एनालाइज करते हैं कि जीत जाते तो ठीक थी, हार जाते तो बुरी थी, राइट? मैं ये नहीं सोचता क्योंकि उस वक्त गेम की सिचुएशन जिस तरह की थी ना, यू लूजिंग अर्ली विकेट्स, 3 डाउन चीपली, and we all know what Virat Kohli brings to the table. Virat Kohli is the best anchor in T20 cricket. और जितना भी आजकल के मॉडर्न डे आप कह लो, एक्सपर्ट्स ही कह लो, एक्सपर्ट्स ही कहते हैं उन्हें, बट जितना भी वो कहते हैं कि स्ट्राइक रेट मैटर्स, यस इट डज मैटर इन सर्टेन सिचुएशंस. लेकिन अगर आप ओकेजन देखो, आप प्रेशर सिचुएशन देखो, आप पिच की कंडीशन देखो, और आप देखो कि हाउ वेल साउथ अफ्रीका वाज बॉलिंग अपार्ट फ्रॉम मार्को यानसन. एवरीवन वाज चिपिंग इन, बड़ी अच्छी लाइंस पकड़ी हुई थी. रबाडा वाज कभी अच्छा हो जाता था, कभी बुरा हो जाता था, बट नॉर्किया एंड एवरीवन वाज चिपिंग इन विद द परफेक्ट लाइन एंड लेंथ उस सिचुएशन में जो चाहिए थी. They got rid of Rohit, Pant, Surya Kumar Yadav cheaply, right? अब वहां पे अगर कोहली भी आउट हो जाता, यू गाइस वुडंट हैव रीच्ड
178 was it? Yeah, इतना ही था ना? 176. Yeah, 176, yeah. 176. 176 पे तो ना पहुंचते ना फिर. It was a ball game of 140, defending 140. तो I think एक बंदा खड़ा हुआ था, उसके इर्द गिर्द पूरी बैटिंग लाइनअप ने परफॉर्म किया. दुबे केम इन गुड, अक्षय केम इन गुड. अक्षय वाज brilliant with the bat. 47, a quick 47 was what India required. कोहली अगर वो करता ना और आउट हो जाता, तो फिर उस पे सारों ने क्रिटिसाइज करना था. आई थिंक मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में द बैटर्स जो इस तरह के होते हैं, दे डू नॉट गेट देयर ड्यू प्लॉडेट्स, राइट? हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि बाबर आजम जो है वो एंकर करता है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है. मैं फिर भी यही आर्ग्यूमेंट देता हूँ उस वक्त भी, यार बाबर का 40 और 40 निकाल दो तो टीम तो 80 पे ऑल आउट हो जाएगी. क्या करे? दैट्स द क्वालिटी. अब उसी सिचुएशन में जब कोहली आया, कोहली ने करके दिखाया, ब्रो. दिस इज हाउ यू प्ले. 50 दो फेजेस में थी उसकी पूरी इनिंग्स. फर्स्ट 50 वो स्लो, क्योंकि एंकर करने की जरूरत थी उस वक्त. उसके बाद he hit what 26 of 10 balls, something like that. We know Virat Kohli has that. लेकिन if you judge the situation of the game, और वहां पे मेरे लिहाज से the most crucial thing was not losing any more wickets. Or Virat Kohli took it upon himself. He is the greatest batter of this generation, or you can argue you can argue the greatest batter in all formats, right? तो टूर्नामेंट अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन जब जरूरत होती है तो फिर खड़े होते हैं बड़े प्लेयर्स. Right, right. So India makes 176 with some useful contributions by Dubey and Akshar Patel, जो आपने Yeah. कहा, and we get to 176. And how about South Africa's chase? साद अगर आप उस साउथ अफ्रीका की पूरी चेस को आप कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब किया जाए तो where did they go wrong and what could they have done better? यार, I think up until 15 overs they were near to perfect. Up until the 15th over mark, 30 of 30 जहाँ पे चाहिए था ना. उसके बाद क्लासन की जो विकेट थी ना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. आई फील सारे कह रहे थे कि मिलर का कैच वाज द टर्निंग पॉइंट, लेकिन फिर भी 10 ऑफ 5 एट दैट सिचुएशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है. वो क्लासन की जो विकेट पांड्या ने ली है ना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम. एंड आई फील क्लासन रिकॉग्नाइजेस दैट टू, कि भाई इस वक्त मैंने गलत टाइम पे विकेट दी है. मेरे लिहाज से साउथ अफ्रीका डिड नॉट प्ले बैडली. दे वर राइट in it till 15 overs. That one silly moment by Klaasen, क्योंकि काफी वाइड थी और उसको खेल दिया. उसके अलावा 15 over onwards, Bumrah, Arshdeep, Pandya just blew them away. So I don't think South Africa पे इतना ज्यादा blame जाना चाहिए क्योंकि at the end of the day final में आप 30 of 30 or 6 wickets in hand, you should win that. But the bowling by India was amazing, and that's what won them the game, rather than South Africa batting poorly. Okay. Yeah, I mean, if you look at it from the perspective of Bumrah's bowling, तो of course it was wonderful, and Pandya and Ashdeep ने भी बहुत crucial overs कराए. But you think that even if when they lost Klaasen, they still needed like 30 of 29 balls, or and the two batsmen that came, Marco Jansen and Miller. Maharaj, Keshav Maharaj, उस Yeah. run rate जो required था, I think they were capable enough to deal with them. But I think, do you think that they just went into a shell against Bumrah, and even Miller for that matter didn't try any aggressive shots against Bumrah in those 2 overs that he bowled at the death? यार, बुमराह इज एन एनॉमली, राइट? आप पूरा मैच खेल रहे हो तो आपको होता है बुमराह के ओवर रहते हैं, बुमराह के ओवर रहते हैं, बुमराह के ओवर रहते हैं. आई फील साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग डेप्थ थी ना, दैट वाजंट अप टू द मार्क थ्रू आउट द टूर्नामेंट. वो तो हमें पता था. 7 पे Jansen इज अ परफेक्ट नंबर 8. He's not a perfect number 7. He had a howler of a game, man. 4 overs, 49, and what, 2 runs of 4 deliveries, I believe, something like that. Yeah. इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे साउथ अफ्रीका टू चिप इन विद द बैट, बट दैट क्लास बाय बुमराह, आई फील एक अनदर लेवल पे ऑपरेट करता है वो बंदा. वो मैं और बैराम भी उस दिन बात कर रहे थे. हम कह रहे थे यार ये इस दुनिया से नहीं है, ये एलियन है. आई
personally, I've heard a lot about Wasim Akram, Glenn McGrath. वो वाली पीक जो है वसीम अकरम की मैंने नहीं देखी हुई। मैंने लेटेस्ट स्टेज ऑफ हिज करियर काफी देखा हुआ है। Mhm. वकार यूनिस की मैंने पीक नहीं देखी हुई। कुछ लोग कहते हैं वकार यूनिस की 4 ईयर पीक इन द 90s वाज अमेजिंग। आई हैवंट Mhm. सीन दैट। मैंने जो लाइव देखा है ना, इससे ज्यादा Mhm. पीक बुमराह से ज्यादा देखी नहीं है। यू Mhm. आई कंसिडर डेल स्टेन द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन। अब बुमराह की जनरेशन है। सो लेकिन डेल स्टेन ने भी वो नहीं किया जो बुमराह कर रहा है। और T20 क्रिकेट में इस तरह का बॉलर, इट्स अ ड्रीम फॉर एनी कैप्टन टू हैव। वहां पे प्रेशर वो बिल्ड करता है। एंड काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि व्हाई डजंट बुमराह गेट सो मेनी विकेट्स। ही गोज फॉर व्हाट, 4 इकोनॉमी यार। क्या वर्ल्ड कप Mhm. में 4 की इकोनॉमी थी, बट ही वाजंट द हाईएस्ट विकेट टेकर। ही बिल्ड्स Yeah. अप दैट प्रेशर फॉर। आप सोचते हो यार, आई एम प्रीटी श्योर यानसन, मिलर, महाराज सबने सोचा होगा बुमराह का ओवर निकाल लो, 2 रन Mhm. बने, 4 रन बने, उसको आखिरी 2 ओवर्स में बाय द वे 6 रन ही पड़े। कोई नहीं, Mhm. हम दूसरों को टारगेट करेंगे। जब दूसरों को टारगेट करने के जाते तो वो विकेट्स ले लेते हैं। सो वहां पे इंडिया का जो एडवांटेज है ना बुमराह का, दैट्स मैसिव। किसी और टीम के पास वो वाला एडवांटेज नहीं है। इंग्लैंड के पास हो सकता था अगर आर्चर थोड़े अरसे से क्रिकेट खेल रहा था। ही वाज आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो वाला इम्पैक्ट दुनिया में कोई प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं यैनसन, महाराज, मिलर को इतना ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज बुमराह इज डिफरेंट ग्रेवी। Mhm. Yeah, I think Bumrah की जो अभी peak है, it brings to mind many of the bowlers of the earlier era like Wasim Akram, as you said, even Saqlain Mushtaq and या Saeed Ajmal and Sunil Narayan. But I think जो ज़्यादातर वो I'm talking of names of these bowlers जिनको batsmen struggle to just cope with them and not give away the wickets. But mostly they were all spinners. I mean, except Wasim Akram, of course. But या मतलब इस टाइम पे इस कंटेम्प्रेरी ज़माने में टू हैव अ पेस बॉलर जिसको इतनी इतनी ज़्यादा दहशत जो मचाता है, दैट्स आई थिंक दैट्स यूनिक फ्रॉम बुमराह। सो या इट्स यूनिक। that is amazing. And I mean, if you look at Pakistan fast bowlers as well of today's generation, I think it's very, I couldn't believe I could say it one day that, probably Bumrah is better than some of the Pakistani bowlers. I don't know what is your take on that, but No, no, I, I 100% agree to that. I felt when Shaheen came in that Mhm. he had all the tools to become the best bowler in the world, but he's regressed. Is it related to injury? Is it related to just not being serious? वो मैं कुछ नहीं Mhm. कह सकता. I feel उसका वो rehab properly नहीं हुआ अभी तक. Mhm. I don't know. He just doesn't look in that rhythm. 2021 वाला शाहीन को कंपेयर करो 2024 वाले से, तो जमीन Mhm. आसमान का फर्क है। Yeah, Bumrah, yeah, on the other hand, Mhm. when he came back from injury, he's better than before. Yeah, He is yeah, the best, जिस तरह मैं और बैराम भी बोलते हैं, the best cricketer, all format cricketer in the world. उसमें मैं yeah. आर्ग्यूमेंट कोई ले नहीं सकता। लोग कहेंगे कोहली, Mhm. कोहली था, he Mhm. was the best all format cricketer at one point, लेकिन currently it's जसप्रीत बुमराह मैन। Mhm. पाकिस्तानी बॉलर्स तो बहुत रिग्रेस कर गए हैं उसके कंपैरिजन में भी नहीं। वैसे ही अगर देख लो ना, बहुत ज्यादा रिग्रेस होगी हमारी पूरी टीम। Yeah, I think मेरा ये opinion है काफी time से that if you look at now since you mentioned Kohli that अगर it as a T20 valuable asset if you look at it from and compare Kohli and Bumrah, of course Kohli का एक amazing record है, no doubt about it. He's one of the greatest T20 cricketers. But I think जो value Bumrah लेके आता है on the board and the kind of uh, asset that he is, which is required for T20 cricket, I think probably he's slightly ahead of Virat Kohli in that sense that Virat Kohli ka replacement फिर भी हमें because of the batting riches that we have, we will obviously not get as great as Kohli, but we will get people who will do very well in terms of batting and might not make the absence of Kohli be felt so much. But I don't think Bumrah का कोई replacement at least in the near future कोई हो सकता है. So I think अगर कल को कोई मैच हो and there is a injury concern for both Kohli and Bumrah, I think I would be more concerned about Bumrah than Kohli, especially in T20 cricket. So anyway, that's a different अच्छा, I'd like opinion. to add something to that, Siddharth. Yeah.
2022 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में बुमराह नहीं था ना? नहीं था, बुमराह नहीं था, या। और 2021 में था वो? Yeah, 2021 he was there, yes. I do not remember him Yes, making he it. was there, he was there, yeah. अच्छा, Although, 2020, um, हाँ, yeah, I think he got injured just after that 2021 World Cup, and that's why अच्छा, he did not play 2022. हाँ, 20 वो देख लो ना, मतलब साल, he had an injury for more than a year, और Yeah, उसके बाद इस तरह का आना, it's remarkable. I haven't seen someone come back from injury and be twice as good as he was before. Twice थोड़ा yeah. ज़्यादा कह गया, but Mm. better than before. That's amazing, amazing. Definitely, definitely. जी, And I think uska jo test match performance, I don't know if you saw the test series between India and England. yeah, I think that is when I really felt that Bumrah was operating on a different level altogether. he is, yeah. And yeah, so Sad, we Hmm. moving on and from that exceptional final and talking about Hmm. overall the World Cup. How do Hmm. you view it? Because taking it to the US and West Indies hosting after many Yeah. years now. So how do you view it? Do you view it as a success or not as successful as you would have liked it to be? What are the takeaways? And I would like you to combine Hmm. this with the next question of the issues with organization and logistics Hmm. of World Cup. जो आपने पहले mention किया था that you were not happy Yeah. with some of the aspects. So would like you to throw some light on it, Yeah. please. So I felt that it was a good decision to take it to the US and West Indies. West Indies obviously deserved a World Cup as well. West Indies में management जहाँ तक देखी जाए तो regarding the grounds and the stadiums obviously already built infrastructure, right? तो उधर इतने ज़्यादा issues नहीं थे, सिवाय ये थोड़े से issues थे कि जो कि fans को भी थोड़ा सा issue हो रहा था, और अभी इंडियन टीम को भी इशू है, दे केम इन लेट बिकॉज जमैका में कोई फ्लड वार्निंग आ गई थी। Yeah. फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी फैंस को टू गो Mm. बैक एंड फ्रो फ्रॉम वन स्टेडियम टू द अदर स्टेडियम, राइट? वो एक थोड़ा सा इशू था। जहां तक यूएसए की बात है, आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन टू टेक इट टू द यूएसए, टू एक्सपैंड द गेम ओवर देयर, बिकॉज एवरीवन नोज अगर स्पोर्ट्स में कोई भी मुल्क मार्केट कर सकता है किसी चीज को, दैट्स यूएसए मैन। आई मीन, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में बैठे हुए अगर आपको माइकल जॉर्डन का पता है, अगर आपको टॉम ब्रेडी का पता है, अगर आपको टाइगर Mm. वुड्स का पता है, तो मैं गोल्फ तो नहीं कभी देखी मैंने जिंदगी में, मैंने एनएफएल बहुत कम देखी है। हाउ डू वी नो? बिकॉज यूएस मार्केट्स इट बेटर, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो क्रिकेट को वहां पे लेके जाना इज ग्रेट फॉर द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ द गेम। Mhm. लेकिन आईसीसी का जो मसला था ना, दे डिड नॉट थिंक दिस थ्रू। फ्लोरिडा, सबको पता है, इज ऑन फ्लड वॉच, राइट? Mm. ऑलमोस्ट हर साल, हर 2 साल बाद उधर आते हैं फ्लड्स। Mm. You could have seen or predicted the weather forecast better कि फ्लोरिडा Mm. में कब हम अरेंज करवाएं मैचेस। ये काफी अरसे से आपको डेटा पता चल जाता है, 40-50 डेज आपको पहले पता होता है कि ये Mm. एक्सपेक्टेड है, राइट? सो यू कुड हैव थोड़ा सा वहां पे कर सकते थे। डैलस वाले जो मैचेस थे वो प्रॉब्ली लेटर हो सकते थे, फ्लोरिडा वाले पहले Mm. हो सकते थे। Mm. सिमिलरली न्यूयॉर्क, ये अब बहराम ने भी मुझे बताया, और फिर मैंने जैरेड किम्बर का उसका जो पॉडकास्ट होता है उस पर सुना कि न्यूयॉर्क की पिच जो है, मतलब जहां पे वो स्टेडियम था, वहां पे ओरिजिनली बनना नहीं था। तो यहाँ Mm. पे सबसे बड़ा मिसहैप हुआ है। Low scoring affairs, I love them. But that pitch Mm. was dangerous. Everyone knows that. कितने प्लेयर्स को लगी है, शुक्र है कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ। एक भी प्लेयर Mm. सीरियसली इंजर्ड हो जाता, उसका वर्ल्ड कप खत्म, टीम का कॉम्बिनेशन खत्म। Mm. आईसीसी ने वहां पे थोड़ी सी गलती की। न्यूयॉर्क ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया का बड़े शहर में ही होना चाहिए था मैच, लेकिन आई फील पाकिस्तान इंडिया इन डैलस टेक्सास वुड garner more attention than न्यूयॉर्क। डैलस टेक्सास में Mm. फिर भी थोड़ी बहुत छोटी कम्युनिटी है जो क्रिकेट ऑलरेडी देखती है, और फिर Mm. वहां पे डायस्पोरा बहुत ज्यादा है पाकिस्तान इंडिया का Mm. टेक्सास में। आई फील कि Yeah. वहां पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है। आई वुड लव टू सी, हालांकि शुक्र है पाकिस्तान इंडिया का मैच पूरा हो गया और बहुत अच्छा मैच हुआ, लेकिन Mm. आई वुड हैव लाइक टू सी better conditions, playing conditions in the New York phase. 75 पे टीम आउट हो रही है, 138 was the highest score there. I did not Mm. like that one bit. कभी बाउंस उधर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे बैठ रहा है। प्लेयर्स के लिए डेंजरस तो है ही है। उसके अलावा Mm. क्रिकेट का मजा खत्म हो जाता है यार, व्हेन पिच, Mm. आप बॉलर की स्किल पे नहीं जाओ,
आप पिच की स्किल पे जाओ, स्किल क्या, पिच की कंडीशन पे जाओ। अब फॉर एग्जांपल बुमराह ने शॉर्ट डिलीवरी करवाई है और वो पाँवों में आ रही है, तो वो बुमराह की स्किल का तो ना हुआ ना, बुमराह ने तो Hmm. शॉर्ट डिलीवरी कराई थी, वो तो पिच का हुआ, तो वो मजा खत्म हो जाता है। Hmm. ये एग्जाम्पल थी, कोई अब दिल पे ना ले लेना प्लीज। Mm. No, I think very well said, and yeah, there are a lot of issues that did come up, and in fact, एक मेरा question है साद आपके लिए, which was not part of what I planned, but just to sort of look at it from the off-field, logistical challenges to continuing with off-field, but ये जो ICC का जो हर बार का होता है to have India Pakistan in one group. And also about this pre-seeding of teams जहाँ पे मुझे तो लगता है it's like an indirect form of rigging, of because आप एक तो by keeping India Pakistan in one group, you're ensuring that you are getting that big ticket game, which I understand, economic reasons have, but every tournament you're having India Pakistan play in a league stage which where the stakes are not too high, and then you don't give them a chance to probably see कि वो knockout में या second round में आके खेले where the stakes become much higher. So what is your take on this? And secondly जो ये pre-seedings हैं जिससे they make sure that for example India Australia चाहे वो किसी भी position में finish करे अपने group में, they are going to play each other. And similarly, some other teams are sort of fixed to play no matter what their seedings are. So एक तो what is the point? There's no incentive for a team to finish first or second in their group, and that robs the tournament of unexpected matchups. For example, अगर India, for example, खेलती Australia से without the preceding, it would have been much more exciting. So, how do you view these systems that the ICC follows in such tournaments? यार आई डू नॉट लाइक दिस वन बिट, एंड एज अ फैन, क्योंकि आईसीसी तो एज अ फैन नहीं सोचती ना, वो तो एज बिजनेस सोचती है कि हम कहाँ से ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन एज अ फैन अगर मैं बताऊँ ना, तो इट टेक्स आउट द एक्साइटमेंट फ्रॉम द टूर्नामेंट। मुझे पता है अगले 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है, पाकिस्तान इंडिया ने खेलना है। ये तो नहीं हुई ना बात, पूरी दुनिया को पता है हाँ ये मैच आएगा। ऐसे नहीं होता टूर्नामेंट्स में, बायलैटरल्स की अलग बात है, Hmm. टूर्नामेंट्स में तो ऐसा नहीं होता। आप कभी खेलते हो, कभी नहीं खेलते हो, और वही एक्साइटमेंट होता है। अब एग्जाम्पल ले लो, अगर पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल में खेल रहे हो, विदाउट यू नोइंग इट कि पाकिस्तान इंडिया खेलेंगे सेमीफाइनल में। Hmm. 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप ले लो, Yeah. पाकिस्तान और इंडिया ने पहले तो नहीं खेला था, सेमीफाइनल में ही खेला नहीं, था ना। semi-final में, एवरीवन yes. रिमेंबर्स दैट मोमेंट, दैट गेम, True, राइट? true. थोड़ा बहुत ऑब्वियसली 2022 T20 वर्ल्ड कप वाज एन ओकेजन एज वेल, लेकिन यार ये यू यूज द परफेक्ट वर्ड, रिगिंग। Mhm. ये रिगिंग है। अब इंसेंटिव निकल जाता है टीम को फर्स्ट फिनिश करने का, हो गया बस पहुंच जाओ किसी तरह। Yeah. आखिरी गेम की वो वैल्यू नहीं रहती, आप पहले 2 जीत चुके हो तो एज अ फैन मैं आईसीसी को तो नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि वो करेंगे ये, दे विल नॉट स्टॉप। वो और चांसेस ढूंढेंगे कि किस तरह हम और करवा सकते हैं इस तरह के मैचेस। एज अ फैन मैं ये बोल सकता हूँ यार, इट टेक्स द एक्साइटमेंट आउट आउट ऑफ द गेम, एंड आई बिलीव कि जितना रैंडम हो, जितना आप फाइट करो फॉर द फर्स्ट स्पॉट, और फर्स्ट स्पॉट वाले को कोई एडवांटेज भी होना चाहिए ना। Yeah. फिर Yeah. आप, क्योंकि वो फिर मीनिंगलेस गेम हो जाती है। आप फर्स्ट फिनिश Mm. करो, सेकंड फिनिश करो, आप जाके खेल उन्हीं टीमों के साथ रहे हो, तो Mm. फिर फायदा क्या उस चीज का? फिर वो गेम में कंपेटिटिवनेस आप निकाल रहे हो, ठीक है, आप ऑब्वियसली एज एन एथलीट आप हर मैच जीतना ही चाहोगे, लेकिन वो Mm. कंपेटिटिव एज आप भी थोड़े से तो रिलैक्स होगे ना, कि यार मुझे इंजरी ना हो जाए, मैं ये Mm. वाली डाइव ना मारूं, हम ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। Mm. तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं गेम में, विच पुट्स द गेम इनटू डिस्ट्रीब्यूट, और आई फील आईसीसी विल नीड टू हैव अ लॉन्ग हार्ड लुक एट दिस, कि यार एटलीस्ट, चलो पाकिस्तान इंडिया का करवाना है वो तो मैं समझता हूँ क्योंकि पैसे कमाने, एटलीस्ट ये प्री सीडेड वाला चक्कर तो खत्म Mm. करें ना। Yeah. एक चीज उन्होंने अच्छी की थी जो मुझे बड़ी अप्रिशिएट करूंगा मैं आईसीसी को, कि 20 टीम टूर्नामेंट था, एसोसिएट्स Mm. को चांस मिला है और कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने का, अच्छी टीमों के साथ खेलने का, यूएसए बीटिंग पाकिस्तान। अगर Mm. अगर पिछले वाले मॉडल पे होते यूएसए होती ही ना, खैर वो तो एज होस्ट क्वालिफाई किए हैं, लेकिन Mm.
they would qualify for the first time in their history, and Yeah. USA beating Pakistan was the biggest upset in T20 cricket history, I feel, and Mm, USA का biggest moment in their cricketing career, cricketing जो भी mm, journey, career तो नहीं होगा USA का, mm. but ये वाली चीजें अच्छी की हैं, ICC ने यहाँ पे appreciation भी बनती है उनको. Yeah, but I think बहुत लोग भूल जाते हैं ये बात साथ that just before the Hmm. T20 World Cup USA ने बांग्लादेश को एक सीरीज में Yeah, हराया था. So I think yeah. that was a big deal for USA That to win was a huge. series, not just a match. So I think that gave a bit of a hint to world cricket that the USA would Hmm. not be taken lightly. So Yeah. yeah, coming to you mentioned about Pakistan losing to US, and now I want in this segment to focus on Pakistan's performance. Of course, it was a very disappointing performance, and even for the tournament, I think although it's great to have an associate team making it Hmm. to the second round, but then I think जो पाकिस्तान का एक charisma और एक ऑरा होता है once they go through from the first round to second round and you never know what happens after that. So that I think was missing in the Super 8 stage. So what do you have to say about Pakistan's performance, Saad, and where do you think that they lacked? Yet, Siddharth, before answering this, I would like you to answer this. Okay, what do you think about Pakistan's performance? I think Saad, it's it's just down to and I mean I just felt that progressively even against Ireland, उनकी performance में उनके confidence में इतना dip आया that Hmm. chasing 100 plus runs against Ireland, losing 7 wickets, and they needed 2 sixes from Shaheen Shah Afridi to get through, showed that see, there is a lack of confidence in the team, and it sort of goes up to the management, the lack of stability in the Hmm. management, and I mean, everyone knows about all these things. साथ तो मैं इसमें नया add तो I Hmm. think from my distant point of view, being in India, I can't really comment much, but I think मुझे लगता है that when you say strike rates are overrated, yes, you are right, but to some extent, I In a think in case sense, of in a Babar sense. Azam and yeah, Babar Azam and Rizwan we have for a long time now that they've been opening and they've Yeah. been scoring at this rate, and I feel that there is somewhere I think they need to be either one of them needs to be dropped or both of them need to be dropped from the team because they are just not giving them the kind of starts that they require. And Hmm. I understand the wickets were tough, but I'm talking about over a sample size of 4 5 years now. Yeah. Even in the period when they did do well, they reached the Hmm. semi-final in 2021, reached the final in 2022. But still, I feel that Hmm. the aggression was lacking, the Hmm. confidence was lacking, and just discarding players like Ayub. I think the no look shot guy who what's his name? Saim Ayub. Saim Ayub, yeah. Yeah. I think they needed to be now. I think they need to be given a proper run. But I think, अगर आप मुझसे पूछो, I think just lack of confidence and lack of belief in themselves is what I Hmm. feel was the reason. All right. So first of all, to clarify, did not mean that strike rates are overrated. I Hmm. mean, in certain situations, Yeah, yeah, right. आप ignore I'm कर sorry सकते for हो that. Yeah, strike rate. yeah. Uh, Obviously T20 क्रिकेट है, आप स्ट्राइक रेट पे ना खेलो तो फायदा क्या है? आप 126 रन पर ओवर पे फिर करोगे. इन सर्टेन सिचुएशंस फॉर सर्टेन प्लेयर्स. अब अगर इंडिया में आपने, खैर मैं जब भी अपनी आइडियल T20 टीम बनाता हूँ ना, तो उसमें हमेशा एक एंकर रखता हूँ, बिकॉज ठीक है कोलैप्स हो गया लेकिन कोलैप्स से बचाना भी तो है. कोहली प्रूव दैट, राइट? इंडिया में अगर कोई एंकर खिलाना है तो कोहली से बेहतर कोई नहीं है. सिमिलरली मेरे लिहाज से पाकिस्तान में खिलाना है तो एट दिस मोमेंट इन टाइम अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम से बेहतर नहीं है आपके पास एंकर. बाकी उसके इर्द गिर्द अगर आपने टीम बिल्ड करनी है तो वो प्लेयर ही नहीं है आपके पास अवेलेबल. वी ऑल सॉ हाउ फ्रैजाइल दैट मिडिल ऑर्डर वाज. एक बंदा मुझे कोई गिनवा दे अपार्ट फ्रॉम फखर जमान हु कैन हिट, बट ही इज टू इनकंसिस्टेंट एंड हिज बेस्ट यूटिलाइजेशन इज इन द पावर प्ले. उसको टू डाउन रखा हुआ है हमने. सो देयर इज अ होल, बहुत लंबी डिस्कशन है अगर मैं इस पे शुरू हो गया ना. सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान क्रिकेट के, सिर्फ T20 के नहीं है. अभी टेस्ट सीरीज आएगी बांग्लादेश के अगेंस्ट, वी माइट विन दैट, लेकिन यू विल सी वी आर पेपरिंग ओवर द क्रैक्स. ODI फॉर्मेट
वी ऑल सॉ ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या हुआ पाकिस्तान के साथ। सिस्टमैटिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इंस्टेबिलिटी विद इन द मैनेजमेंट, इंस्टेबिलिटी विद इन द कैंप, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे मेरे लिहाज से फिलहाल सबसे बड़ा इशू जो है ना पाकिस्तान का, दैट्स द पोलिटिसाइजेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स नहीं होती। इफ आई गो इनटू डिटेल, सिद्धार्थ, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, इफ और ये आपको मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, जो हमारा पीसीबी सिलेक्शन का डेटा एनालिस्ट है, he has nothing to do with cricket. He has nothing to do. He's never been a part of certain, कोई भी क्रिकेटिंग में आज तक उसने किया ही नहीं है काम। He was हमारी पंजाब गवर्नमेंट का फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री का लगा हुआ था, वो जो भी है बॉय। He is our data analyst for the selection committee. Wahab Riaz is our chief selector, who I feel जब वो खेलता भी था तो I couldn't have imagined him as the chief selector of Pakistan ever, because I did not think कि उसमें वो वाला cricket IQ है, and he's selecting players. सेटअप का कोई पता नहीं है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर आ गया, कभी गैरी कर्स्टन आ गया। प्लेयर्स को भी वो स्टेबिलिटी चाहिए होती है यार। एक आइडिया अगर आपने आइडिएशन कर लिया, आपने एक विजन बना लिया कि हमने इस तरह खेलना है, तो टाइम तो दो उसको करने का। आप 2 महीने एक मैनेजमेंट के अंदर खेल रहे हो, वो कह रहे हैं कि आप XYZ करो, दूसरी मैनेजमेंट आती है, वो कहती है स्क्रैच XYZ, डू ABC। प्लेयर्स ही कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद फिर प्लेयर्स की अपने मसले, जो कि पोलिटिसाइजेशन से मैंने बोला था, उसकी वजह से 2-3 डिफरेंट कैप्स बन गए, और वो पोलिटिसाइजेशन जो है वो क्रीप इन कर गई हमारी टीम के अंदर, जिसमें व्हाट वी हियर फ्रॉम पाकिस्तान जर्नलिस्ट इज दैट एक कैंप शाहीन अफरीदी का बना हुआ है, एक कैंप बाबर आजम का बना हुआ है, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपेरेंट है वो फील्ड के ऊपर आपको नजर आ जाता है। वसीम अकरम ने बोला था कि आई हैव नेवर सीन अ पाकिस्तान टीम दिस क्या, नॉट नॉट दिस यूनाइटेड, जो भी है, मैं वर्ड सॉरी मैं भूल गया उसका, कि मतलब नजर आ रहा है कि समथिंग्स रॉन्ग। उसके बाद ये तो एक साइड होगी पोलिटिसाइजेशन, दूसरी साइड है द अनसीरियस नेशन वी आर मैन। हम जो है ना कभी भी इस तरह है कि हम बहुत ज्यादा जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और उससे फिर हम निकलते नहीं है। वी डू नॉट स्ट्राइव टू इम्प्रूव डे बाय डे। इफ यू लुक एट बाबर आजम, he was one of the best batters in 2021 वर्ल्ड कप, राइट? उसके बाद उसने किसी टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया। जिस लेवल पे वो शुरू में अपने करियर पे जा रहा था, आई थिंक हिज ग्राफ वाज लाइक दिस। ठीक है, 2019, 2020, 2021 ही हैड ब्रिलियंट 3 इयर्स। उसके बाद इट जस्ट नोज डाइव्ड। एक आधी बीच में इनिंग्स आई होगी तो आई होगी। couldn't take on that responsibility, lost a bit of fitness as well. If you can see, आप उनके bodies compare करो उस एरा से इस एरा में, तो आपको पता चल जाएगा यार, he's let himself go. वहां पे या तो वो कंफर्ट जोन में आ गया, या he just got a bit too क्या कह सकते हैं उसे, a bit too ज्यादा पावर हंग्री भी नहीं मैं बोलूंगा, बट थोड़ा ज्यादा वो हो गया कि यार आई गॉट दिस बंच अंडर कंट्रोल। फिर दूसरी साइड आ जाती है आपके, जिस तरह मैंने बाबर की बात की है, उस तरह शाहीन भी है। उसकी मैंने आपको पहले पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्या 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 हुआ उसके साथ। इसी तरह रिजवान को देख लो। रिजवान आई फील स्टिल इज करंटली द बेस्ट विकेट कीपर इन पाकिस्तान, उसमें तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। बट जिस तरह का वो परफॉर्म कर रहा था, ही वाज ऑलवेज ऑन द स्लो साइड। PSL में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है उसने, लेकिन उसके बाद फिर इट्स जस्ट इनकंसिस्टेंसी, या बल्कि कंसिस्टेंटली एवरेज, ये कह सकते हैं, कंसिस्टेंटली एवरेज। नए लड़कों को चांस देते हैं, पूरा नहीं देते। वी सॉ दिस विद साइम अयूब कि लाओ लाओ लाओ, एंड आई फील लाना भी चाहिए था। मैं उसके हक में ही हूँ, मैं ये इसके हक में नहीं हूँ कि उसको निकालना चाहिए था। ठीक है, ही इज बिन कंसिस्टेंटली नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल दैट वी एक्सपेक्टेड हिम टू, बट आई फील कि इस तरह टूर्नामेंट के बीच में या टूर्नामेंट से बिल्कुल पहले आप इस तरह के डिसीजन नहीं लेते। ये फिर पूरा प्लान होता है आपका। आपने निकालना था साइम अयूब का, तो थोड़ा पहले निकालते।
आज़म खान इज़ अनदर केस। आज़म खान की फ़िटनेस पे हमेशा सवाल उठता और उठता रहेगा। वी सॉ हिम डू ब्रिलियंटली इन द पीएसएल, इन अदर हुँ, लीग्स, सीपीएल में बड़ा अच्छा खेला है। ही हैज़ दैट फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस, बट वो सिद्धार्थ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर, वो 150 भी मार देता ना इस टूर्नामेंट में, बाकियों में 0 मार या कम करता स्कोर, फिर भी उसको पॉइंट पड़ने थे उसके फ़िटनेस के। पाकिस्तान ने ज्यादती 2 टाइप की है आज़म खान के साथ। एक तो उसे विदाउट सेटिंग अ प्रॉपर फिटनेस रेजीम कि तुम फिट होगे तो टीम में आओगे, उसके बगैर ले आए उसे। फर्स्ट ज्यादती ये हुँ, थी, अच्छा चलो ले आए। हुँ, सेकंड ज्यादती ये थी कि कभी भी उसको कंसिस्टेंट रन नहीं दिया। ही हुँ, प्लेज 1 गेम, ही गोज़ आउट, ही प्लेज 2 गेम्स, ही गोज़ आउट, ही प्लेज 3 गेम्स, ही गोज़ आउट। इस तरह नहीं होते हुँ, फिर चांसेस। फिर आपको एक कंसिस्टेंट रन आपको बताना पड़ता है दूसरे प्लेयर को भी कि यार वी आर बैकिंग यू, नो वरीज। वंस हुँ। यू विल कम गुड, वी नो यू विल कम गुड, देन तुम पकड़ लोगे। लेकिन इस तरह तो फिर कभी भी कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता, और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि ये करते आ रहे हैं। और अगर पाकिस्तान फैंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि दिस विल चेंज, तो आई बिलीव इट वोंट, ये ही चलता रहेगा। Yeah, I mean that's quite हम्म, sad to hear that, Saad, and I just hope that with the Champions Trophy that's coming up in या 2025 in Pakistan, probably they'll be able to plan for that well and give a very good tournament for the fans. Which I think या after such a long time they're getting an ICC tournament in Pakistan. It'll be great if the team performs very well. हम्म, So let's see how that pans out. It's still some time to go for that. When you talk about Saad, about taking the conversation forward, and now talking about the next T20 World Cup is now just another 2 years away. So this is my problem, Saad, that I have, that आपको लगता है कि this T20 World Cup should also, just like the ODI World Cup, be held once in 4 years, or you are fine with this going after every 2 years? यार आई एम फाइन विद दिस गोइंग आफ्टर एवरी 2 years, बिकॉज आई स्टिल बिलीव अगर कोई ट्रॉफी जीतनी है ना आपने, तो फिर ओडीआई वर्ल्ड कप जीतो। दिस इज गुड, एवरी वन वॉन्ट्स इट, लेकिन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी आप ना भी जीतो ना, वो वाला दुख नहीं होता जो आप ओडीआई में बाहर हो। तो आई डोंट नो, मैं शायद आजकल के बच्चे थोड़े से डिफरेंट इसे फील करते हो। मैं थोड़ा प्योरिस्ट हूँ। 90 से क्रिकेट देखते हैं यार, तो हमारा वो एक वो बना हुँ, हुआ है 4 साल ओडीआई वर्ल्ड कप, ये जीतना है हुँ, यार। हुँ, T20 वर्ल्ड कप थोड़ा शुगल मेला है, एंटरटेनिंग क्रिकेट, आई लव इट, उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा कि आई थिंक इट्स सीरियस क्रिकेट। बाय नाउ इट्स वेरी सीरियस, अगर आप जिस तरह के उस पे काम देखें ना। लेकिन आई फील T20 वर्ल्ड कप 2 years एक डिफरेंट फ्लेवर लेके आता है रादर देन 4 years। 4 years मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। आई थिंक T20 क्रिकेट जितनी फास्ट है, उतनी फास्ट ट्रॉफीज भी आनी चाहिए। okay, okay. Well, I have a यू different डिफर? take on this, Saad. Yeah, I feel that एक वर्ल्ड कप का जो आई मीन हम जो बचपन से देखते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप, इवन फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर अस हैज ऑलवेज बीन 4 years, एंड आई थिंक उस पे करियर्स डिफाइन होते हैं, एंड करियर्स खत्म होते हैं, शुरू होते हैं, बिकॉज 4 years इज अ लॉन्ग टाइम, और then players end up with disappointments or with happiness depending on the result. एंड इसमें क्या लगता है मुझे, आई फील दैट एक वर्ल्ड कप का जो दर्जा है, दैट स्टेटस दैट इज देयर, वो थोड़ा-सा डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज़ दे नो दैट हाँ यार, अभी ये वर्ल्ड कप नहीं जीता, चलो ठीक है, 2 साल और हैं, वी कैन ऑलवेज कम बैक। तो आई फील दैट दैट सॉर्ट ऑफ devalues the legacy of this term called the World Cup, or that's what I feel. I फेयर understand इनफ। ICC wants a tournament every year to get more money. तो मुझे ये लगता है now that we have, like, you can have a cycle where you have the World Test Championship, followed by an ODI World, or Champions Trophy rather, then followed by an ODI World Cup, and then a T20 World Cup. तो उसमें मुझे लगता है that there'll be like they'll be even the players will be able to sort of focus more clearly on one या format at one point of time. But I think WTC को 4 साल में करवाना could be a little bit difficult, because of the fact that they might have to play more series than what they currently play. Each team plays 6 series, so they might have to play probably 10 series. So आई I don't know लव how it दैट। goes. Yeah, and I would like, since we have 12 test playing nations,
I Hmm. understand India and Pakistan can't play in India or in Pakistan, but hey, why can't we Yeah. do it in some neutral country? Hmm. So I feel, but yeah, maybe having a test series where each team is playing the other 11 test playing nations might take, I don't know if within 4 years it might happen or not, and with all other formats. So I understand ICC's concern. I mean ICC's challenges also, but yeah, that's just my take that T20 World Cup को 4 साल रखेंगे तो I think उसमें और उसकी और value बढ़ेगी. But yeah, I think अभी तक तो with the broadcast deal that has happened now, I think till 2031 तो everything is Hmm. sort of already Set. set in stone. Yeah. So that is it. So yeah, and I think my last question, Saad, to wrap up this fantastic interview with you is, how do you see T20 now evolving? Do you see any other major changes happening? या you see अभी अभी तक जो evolution हुआ है वो ही चलेगा for the next few years? Excellent. Sorry, Siddharth. Yeah, Sorry. You can cut this out, right? yeah, sure, sure. Okay. So, yeah, so I was asking you, Saad, that how do you Hmm. see the T20 T20 format now evolving in terms of do you think that ये format में जो अभी Hmm. तक evolution रहा है वो ही चलता रहेगा, or do you see some other major trends coming up? यार आई फील 2-3 साल लगेंगे टू फुली इनकॉर्पोरेट दिस न्यू ट्रेंड जो अभी आईपीएल में हमने देखा है Mm, टू गेट इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल देख लिया ना आईपीएल में हम समझ रहे थे कि इसी तरह स्कोर होगा mm, कंप्लीटली डिफरेंट गेम थी यार yeah. कंप्लीटली डिफरेंट गेम मैं मतलब आईपीएल में जो हमने देखा और इधर देखा जमीन आसमान का फर्क आई फील डेटा ज्यादा इंक्लूड हो जाएगा अभी फिलहाल फ्रेंचाइजीज में अब Mm, स्पेसिफिक रोल्स पे जाएंगे नाउ यू आर लुकिंग फॉर योर अभिषेक शर्माज एंड योर जेक फ्रेजर मैगर्क्स राइट mm, आप इनोवेशन इन अ सेंस इस तरह ला सकते हो कि स्पेसिफिक खैर अभी भी होता है वो लेकिन थोड़ा और डेप्थ में आप इसके जा सकते हो यार मुझे सिर्फ और सिर्फ डेथ बॉलर चाहिए आई डू नॉट केयर वो किस तरह खेलता है बाकी जगह ठीक है मैंने इससे mm, 4 ओवर करवाने हैं डेथ में करवाने हैं आई डोंट केयर इस तरह की चीजें यू कैन सी उसके अलावा बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस फिलहाल मैं नहीं देख रहा आई फील mm, ये जो अभी नया ट्रेंड शुरू हुआ है आईपीएल में जो हमने थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस देखे हैं इसके ये अभी ब्रू होगा ये ब्रू होगा एंड 3-4 साल बाद मे बी 2026 वर्ल्ड कप और मे बी द वर्ल्ड कप आफ्टर दैट आपको प्रॉपर ये वाली T20 क्रिकेट का टाइम मिलेगा क्योंकि आई फील इट इज स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा ठीक है वो mm, आपको वैसे पता भी चल गया होगा इतने प्लेयर्स भी रिटायर हो गए बट इट इज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा और दिस विल टेक सम टाइम टू ब्रू और फिर फुली कुक इन अ फ्यू इयर्स mm. बाकी ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे दैट इज माय Okay, पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट डू यू okay. थिंक Great. Yeah, I think I also feel that ये जो हमने IPL में देखा है, this thing I was not expecting it at World Cup in any case, because I think World Cup में when stakes get higher, teams do become a little bit more cautious. cautious yeah. Or even we see, for example, in football, the moment Hmm. the tournament gets into knockout, even the best of the teams try to be a Hmm. little bit more cagey in their play, Hmm. and we see a lot of goalless draws going to extra time. So something similar happens in cricket in terms that if your scores don't go so high. Hmm. But I think over a period of time, I feel more and more multi-dimensional players will be preferred. I think especially इसका थोड़ा सा मैंने अभी जो इंडियन टीम जिम्बाब्वे के लिए सेलेक्ट हुई है उसमें थोड़ा सा इसका एक झलक है, बिकॉज बीसीसीआई नाउ व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट दे आर नाउ विद Kohli and Rohit retiring Hmm. from T20, they're now focusing more on multi-dimensional players, at least जो with at least two Hmm. skills have, if not three, Hmm. in building. But so I feel, yeah, more than specialists, purists, there will be more multi-dimensional players, and I think unless international cricket also comes up with ये जो IPL में जो rule है about the impact player, impact player because yeah. वो impact player, I hate that rule. I feel that should, because that just devalues or just basically Hmm. discards the all-rounders role. तो वो आई थिंक अनलेस वो इंटरनेशनल क्रिकेट में होपफुली नहीं आए तो तब तक आई थिंक मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स विल बी रिक्वायर्ड, एंड Hmm. आई थिंक स्पेशलिस्ट का रोल
धीरे-धीरे कम होने लगेगा और कम अभी हो ही रहा है बट और कम होने लगेगा एज़ एंड आई थिंक स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस और होगा एंड आई वुड हुँ, रियली लाइक साद बीइंग अ फैन ऑफ हुँ, पाकिस्तान क्रिकेट दैट I हुँ, would really want अगर किसी तरीके से the vision for Pakistan cricket is more towards multidimensional and aggressive players, mindset with who have aggressive mindset. So because I feel anchor and sort of seeing through the innings, धीरे धीरे I think it'll not go away immediately, but धीरे धीरे I हुँ, think it will go away maybe by the next 3-4 years. हुँ, yeah. So that's Quite similar to mine, yeah. yeah. Hmm, That's my take, but I think Saad, it's been fantastic. We've been able to cover a lot of points in this podcast, yeah, so thank you so much. And I'm hoping that maybe some months down the line we can do another podcast and talk for about sure. some other key aspects. Yeah, For thank sure. you. It was a pleasure, Siddharth. It was a pleasure. Great. So, just a shout out to my audience that please do follow Saad Nasser on Pro Sports, the podcast that he runs along with Behram, and they have absolutely wonderful shows, not just on cricket, but also on football. And Yeah. you can follow that for because I feel that a lot of other sports do deserve the attention that sometimes in our part of the world, Mm, they don't get. So, great work, Saad. Thank you so much, thank you. and Thank you. hope to keep in touch with you. Yeah, take care. Thank Bye. you. Bye.